Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor from ST College of Commerce, and we are going to start the new topic, uh, which is calculation of interest under section 24. And there are two deduction under section 24, 24A, 24B. Under 24A, we will calculate the standard deduction at the rate of 30% of NAV. Under B, interest on loan. Okay, there are two deduction under section 24B which is allowed to the house property. Okay, and the first deduction is 30% of NAV against the expenses incurred by the landlord, but the deduction of expenses is not allowed to the landlord, but instead of that deductions, the government provide the 30% deduction from NAV, and the another deduction is interest on loan. And we are going to study the second deduction today, that is interest on loan, which is most important topic of the house property. So must understand this topic thoroughly, read from the book, practice and try numerical, because I'm pretty sure that this topic will come in the examination in the theory as well as numericals. Okay, let's start. As we know, there are the two type of uh, houses. The first one is let out property, and the second one is self-occupied property. There are two types of properties which can be allotted, used by the landlord. First, landlord can be used by uh, himself, that is called self-occupied property. And if landlord provided someone else to use for the residential purpose, then we can say it let out property. Let out property, and this is self-occupied property. In case of less let out property or deemed to be let out property, there is no limitation. There is no limitations. No limitation means you can deduct the interest about 1 lakh, 10 lakh, 10 crore. There is no limit of deduction of the interest. And whether in case of self-occupied property, there is a ceiling limit of 2 lakh or 30,000. There is a ceiling limit of 2 lakh or 30,000 at present condition. If there are 2 3 condition, if the condition is satisfied, yes, then the deduction is 2 lakh. If condition is not satisfied, then the deduction is 30,000. Understand? So in case of let out property, there is no deduction. Oh, sorry, there is no limit. You can deduct any amount. Or in case of self-occupied property, there is a ceiling limit. There is a limit. यहाँ तो no limit था और यहाँ limit है. कितनी limit है? 2 लाख या 30,000. There is a limit of 2 lakh or 30,000. And there are the condition. If the condition is satisfied, then the deduction is allowed 2 lakh. And if the condition is not satisfied, then the deduction is 30,000. Then we have to study what are the conditions. Let's study the conditions. First condition, loan is taken after 1st April 1999. मैंने कि 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, या तो परचेज के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, यानी कि मकान खरीदने के लिए लिया हो या मकान को बनाने के लिए लिया हो. यानी कि लोन कैसे लेना है 1/4/1999 के बाद, कैसे लेना है, या तो परचेज करना है या कंस्ट्रक्शन के लिए, और मकान 5 साल के अंदर बन के पूरा हो गया हो. चलिए लिखते हैं. पहली कंडीशन 1/4/1999 के बाद, यहाँ पर लिखते हैं साइड में. लोन
1/4/1999 के बाद लिया हो। नंबर 2, या तो किस लिए लिया हो, परचेज के लिए लिया हो। नंबर 3, या किस लिए लिया हो, कंस्ट्रक्शन। नंबर 4, और मकान 5 साल के अंदर पूरा हो गया है। तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन कितने मिलेगी? आपको ऐसे केस में डिडक्शन मिलेगी पूरी की पूरी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यस, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख। अगर सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो कितनी मिलेगी? तो डिडक्शन मिलेगी आपको 30,000। अब ये 2 लाख या 30,000 किसके लिए है? ये तो आपको पता ही रखा है, मैंने आपको बता ही रखा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से 2 सेल्फ प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है, बाकी सबको क्या माना जाएगा? लेट आउट। अब ये डिडक्शन जो है दोनों मकान के लिए अलग अलग है? नहीं, ये 2 लाख या 30,000 दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सेम ही है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं तो दोनों की डिडक्शन कितनी लेस कराई जा सकती है? 2 लाख या 30,000 मैक्सिमम। सरकार ने दोनों मकान के लिए अलग अलग से डिडक्शन नहीं दी है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम, अगर आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इसका जस्ट मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको। अगर आपने पहला तो था कि कितनी लिमिट कितनी है, अब ये किस लिए कि कैलकुलेशन कैसे होगी। इस वीडियो के अंदर इसकी बेसिक बात करेंगे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपने घर किस लिए, लोन किस लिए लिया है। क्या देखना पड़ेगा आपको? लोन किस लिए लिया है, या तो परचेज के लिए लिया है, या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, या रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, यानी कि 2 अलग अलग बातें हैं। पर्पस, लोन का पर्पस क्या है? पहला पर्पस क्या हो सकता है? या तो परचेज्ड या कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है? रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। किस काम के लिए है आपने? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डिडक्शन जो है अलग अलग हिसाब से मिलती है। अगर आपने लोन को लिया है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपने लिया है लोन को रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तब आपको अलग तरीके से डिडक्शन मिलेगी। अब हम इस चीज़ में समझते हैं कि डिडक्शन कैसे मिलती है। अगर आपने लिया है परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए तो डिडक्शन कैसे मिलती है? तो आपके इंटरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले पार्ट को बोलते हैं प्री, दूसरे पार्ट को बोलते हैं पोस्ट। पहला पार्ट कौन सा होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या सिस्टम है? देखिए जी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड और ये वाला जो इधर की साइड है, ये इनका ट्रीटमेंट डिडक्शन जितनी होती है उतनी मिल जाती है। कितनी डिडक्शन होगी आपको? नॉर्मली मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? इसकी पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कैसे मिलती है? टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5 और आने वाले 5 ईयर्स में इसके डिडक्शन हम लोग दे देते हैं। दोबारा से कैलकुलेशन पर्पस पे डिपेंड करती है कि किस लिए लिया, परचेज कंस्ट्रक्शन पीसी के लिए लिया या आरआर के लिया। अगर पीसी के लिए लिया तो ध्यान रखना पीसी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर टेढ़ा होता है। पीसी यानी कि 2 तरीके से डिवाइड होगा, प्री और पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा।
और प्री की डिडक्शन कैसे मिलती है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। और पोस्ट की कैसे मिलती है, पोस्ट की नॉर्मल डिडक्शन मिल जाती है, जितनी होगी उतनी से मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे जिससे हम समझ सकें कि प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड डिवाइड कैसे होता है। थैंक यू गाइस।